Ignited Minds Tutorials recently released a knowledge-packed video on thermodynamics and electrostatics and physics aimed at enhancing understanding and preparation for competitive exams like IIT, NET, and various CETs. Covering previous year's questions, this tutorial equips students with key concepts and problem-solving techniques critical to their success in these exams. Thermodynamics, the study of energy and its transformations in systems, is a fundamental concept in physics. It explains how energy is transferred, converted, and utilized in various processes, such as heat engines and refrigerators. By comprehending the laws of thermodynamics and their applications, students gain insights into real-world phenomena and contribute to advancements in energy technology. Similarly, electrostatics, the study of electric charges and their interactions at rest, plays a crucial role in understanding the behavior of electric fields and electrical potential. This knowledge forms the foundation for understanding circuits, electromagnetic fields, and other fundamental principles in physics. Ignited Minds Tutorials video provides a comprehensive explanation of these topics, offering clarity and insight into the complexities of thermodynamics and electrostatics. By analyzing previous year's questions, students can assess their preparation levels and identify areas that require additional focus. In summary, this video by Ignited Minds Tutorials serves as a valuable resource for aspiring students, delivering a deep understanding of thermodynamics and electrostatics. With its emphasis on previous year's questions, it efficiently equips students with the necessary knowledge and problem-solving skills to excel in competitive exams. ओके चलिए बच्चा पार्टी भाई साहब, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के ऊपर हम करेंगे भाई साहब PYQs जो आ चुके हैं, ठीक है। ओके 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 चलिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स जेई मेंस के सवाल से स्टार्ट करते हैं भाई साहब। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स है यहाँ पे, ठीक है। तो ज़्यादा करके आपका कूलम्स लॉ यूज होगा, ठीक है। अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्सेस यूज होंगे। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे देखो एज शोन इन द फिगर अ कॉन्फिगरेशन ऑफ टू इक्वल पॉइंट चार्जेस। दो इक्वल पॉइंट चार्जेस हैं, समझ लो ये आपका Q है तो ये भी आपका Q नॉट है, जो भी है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली इक्वल टू हाउ मच 2 माइक्रो कूलम इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। एक इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है, ऐसे एक इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है दो चार्जेस, ठीक है। अज्यूम दैट देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द चार्ज एंड द प्लेन। इस चार्ज के बीच में और प्लेन के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। फॉर द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस टू बी इन इक्विलिब्रियम द हाइट h that is equal to x into 10 raised to minus 3 मीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब देख लेते हैं हम इसको। ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये आपका भाई साहब एक इंक्लाइंड प्लेन है। यहाँ पे आपका एक चार्ज रखा हुआ है, लेट्स से Q नॉट, ये चार्ज है और ये वाला एक चार्ज है भाई साहब Q नॉट का, ठीक है। दो चार्जेस ऐसे रखे हुए हैं। ये वाला जो डिस्टेंस है आपका, दिस डिस्टेंस इज बेसिकली इक्वल टू हाइट h। ये हो गया भाई साहब हाइट h, ठीक है। ये हो गया हाइट h और यहाँ पे h की वैल्यू क्या दी हुई है आपको, x इंटू 10 रेज टू माइनस 3 मीटर। आपको इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। क्वेश्चन को समझिए, यहाँ पे दो चार्जेस हैं, इन दोनों चार्जेस का Q नॉट की वैल्यू कितनी है भाई साहब, +2 माइक्रो कूलम। तो दैट विल बी 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 कूलम, ठीक है। मास ऑफ ईच पॉइंट चार्जेस 20 ग्राम। दोनों पॉइंट चार्जेस का मास कितना है भाई साहब, ये वाले का मास इज हाउ मच 20 ग्राम। इसको SI यूनिट में परिवर्तित कर लीजिए, इंटू 10 रेज टू माइनस 3 kg। सो दैट विल बी हाउ मच 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 kg। क्लियर है, आर वी क्लियर। ये हो गया आपका मास, ठीक है। ओके assume that there is no friction between the charge and the plane for the system of 2 point charges to be in equilibrium। इक्विलिब्रियम में रहने के लिए हाइट कितना होना चाहिए। ओके देखो अभी फोर्सेस को समझो। यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है। ये चार्ज अपने मास की वजह से लुढ़कना चाहिए नीचे, लेकिन ये लुढ़क नहीं रहा है क्योंकि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है। समझ में आ रहा है। देखो ये चार्ज क्या होना चाहिए, लुढ़कना चाहिए नीचे, ठीक है। लेकिन ये लुढ़कने नहीं दे रहा क्योंकि यहाँ पे एक इक्वल चार्ज यहाँ पे प्लेस्ड है।
सो दीज आर टू इक्वल चार्जेस, ठीक है, इनके मैग्नीट्यूड है। तो इसका मतलब यहां का रिपल्सिव फोर्स इसको ठसा के रखा है, इसका लुढ़कने नहीं दे रहा है। ओके, तो आपका रिपल्सिव जो नीचे लुढ़कने का फोर्स है वो कितना होगा, एम जी साइन थीटा, है कि नहीं भाई साहब, ये होगा एम जी साइन थीटा। आर बी क्लियर? लेट्स से अगर हमने इसको थीटा माना तो ये वाला कितना होगा, जी साइन थीटा होगा। तो ये वाला जो लुढ़कने वाला फोर्स है वो क्या होगा, एम जी साइन थीटा। ओके, ऊपर जाने वाला फोर्स क्या होगा बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एम जी साइन थीटा विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो यहां पे एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट का स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर, वेयर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू। समझ में आता पेपलम, ए बच्चा पार्टी समझ में अड़ी की नहीं, ये आर समझ लो भाई साहब डिस्टेंस है, हम कूलम्स लॉ लिख रहे हैं बस, ठीक है, वेयर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, ठीक है, क्लियर है? ये दोनों भाई साहब बराबर हो गए, तभी तो ये लुढ़कना चाहिए, कितने फोर्स से लुढ़कना चाहिए, एम जी साइन थीटा से, लेकिन इसने इसको ठसा के रखा हुआ है, इसको लुढ़कने नहीं दे रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब एम जी साइन थीटा और ये फोर्सेस आपके बराबर हो गए इक्विलिब्रियम के लिए। ओके, चलिए अभी आपको ये एच लाना है, तो आप यहां पे क्या करेंगे भाई साहब, एम जी साइन थीटा, एम की वैल्यू मालूम है, ये हो गया आपका कितना 9 इंटू 10 रेज टू, देखो यहाँ पे दिया हुआ है वैल्यू 9 इंटू 10 रेज टू 9, क्यू नॉट का स्क्वायर मतलब 2 माइक्रोकूलम का स्क्वायर, तो क्यू नॉट का भाई साहब स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 4 इंटू 10 रेज टू -12, तो ये हो गया आपका 4 इंटू 10 रेज टू -12। इस आर के जगह पे बच्चा बाड़ी क्या लिख सकते हो, ये आपका आर है, ठीक है, एच बाई आर इज इक्वल टू साइन थीटा है भाई साहब, यहां पे देखो एच बाई आर, ये एच बाई आर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज साइन थीटा, ठीक है, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, आर साइन थीटा हो जाएगी कि नहीं, ठीक है, आर साइन थीटा हो जाएगी। अभी चक्कर ये है कि हमको थीटा का वैल्यू मालूम नहीं है, अज्यूम दैट देयर इज फॉर द सिस्टम ऑफ टू द हाइट मिनिमम आपका कितना होना चाहिए, इस एच की जगह पे आप लिख सकते हो, आर की जगह पे क्या लिख सकते हो बोलो, आर इज इक्वल टू यहां पे हो गया आपका आर साइन थीटा, ठीक है, और ये हो गया आपका एम जी साइन थीटा, ठीक है। बताओ भाई साहब अभी कैसे करेंगे इसको, द वैल्यू ऑफ एक्स, तो आपको एच में ही लेना पड़ेगा यार, एच में ही लेना पड़ेगा, दिया है कहाँ है भाई साहब, थीटा का वैल्यू 30 है, चलिए तो साइन थीटा ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, साइन थीटा, चलिए साइन 30 हो गया, ये एम जी मतलब कितना हो गया आपका, देखो एम जी हो गया आपका 2 इंटू 10 रेज टू -3, जी की वैल्यू दी हुई क्या भाई साहब, नहीं ले लेते हैं अपन 10, ठीक है, जी की वैल्यू हो गई 10, साइन थीटा मतलब साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2, ठीक है, इज इक्वल टू 9 इंटू 10 रेज टू 9 इंटू 4 इंटू 10 रेज टू -12 अपॉन आर की वैल्यू कितनी है भाई साहब नहीं मालूम है, ठीक है, और ये हो गया साइन थीटा मतलब हो गया आपका साइन 30 दैट इज 1/2, तो ये भाई साहब ऊपर गया ये 2 भाई साहब ऊपर 2, 9 इंटू 4 हो गया आपका 36, 9 -12 तो ये हो गया आपका -3, इधर भाई साहब क्या बच रहा है, और बचा नीचे क्या आर, ठीक है, और इधर कितना बच रहा है बोलो, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, 10 रेज टू -2 है कि नहीं, 10 रेज टू -2, इस आर को इधर ले लो, तो यहाँ पे हो गया 2 इंटू 36 दैट इज 72 इंटू 10 रेज टू -3 अपॉन 10 रेज टू -2, समझम, तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो, r इज इक्वल टू 72 इंटू 10 रेज टू -3 प्लस 2, तो ये हो गया 10 रेज टू -1 मतलब हो गया आपका 7.2, r की वैल्यू हो गई, ठीक है। ओके, अभी भाई साहब आपका r क्या है, h बाई आर इज इक्वल टू साइन थीटा, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, r साइन थीटा, तो मतलब कितना हो गया बोलो, r की वैल्यू 7.2 और साइन थीटा मतलब साइन 30 दैट इज 1/2, तो ये हो गया आपका कितना 3.6, तो h की वैल्यू कितनी हो गई 3.6, क्या ये समझ में आ रहा है। ओके, अभी देखो यहाँ पे तुमको क्या दिया हुआ है, h इज इक्वल टू x इंटू 10 रेज टू -3, इसको अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, h इज इक्वल टू, ये 3.6 है ना, तो अगर मुझे इसको बनाना है 10 रेज टू -3 पे, तो अपन 3 1 2 3 है ना, तो यहाँ पे 3600 इंटू 10 रेज टू -3 ऐसा लिख सकते हैं, 3.6 को 3600 इंटू 10 रेज टू -3 लिख सकते हैं, 3.6 हो जाएगा। तो आपका इसको कंपेयर करो किसके साथ, जो दिया हुआ है तुमको
h इज इक्वल टू x इंटू 10⁻³ के साथ, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई 3600। ये आपका निपटाता है भाई साहब जेई मेंस का सवाल, x की वैल्यू 3600। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, ये क्लियर है? ओके ओके ओके, चलो भाई साहब यहाँ पे आपको दिया हुआ है 3 पॉइंट चार्जेस आपको दिए हुए हैं। ठीक है, जेई मेंस का सवाल है, 3 पॉइंट चार्जेस कौन कौन से भाई साहब आपके, 2q -2q एंड q, ठीक है, आर प्लेस्ड ऑन द x एक्सिस एट अ डिस्टेंस x इज इक्वल टू 0, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं अपन। ठीक है, x इज इक्वल टू 3/4r एंड x इज इक्वल टू r फ्रॉम द ओरिजिन। q की वैल्यू कितनी है भाई साहब, यहाँ पे दी हुई है, q की वैल्यू है भाई साहब कितनी, 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और r की वैल्यू दी हुई है 2 सेंटीमीटर। लेट्स गेट दिस कन्वर्टेड इनटू मीटर, सो दैट विल बी 2 इंटू 10⁻² मीटर। द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय, इस वाले का कितना एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, देखो यहां पे आपका कितना है, फोर्स ऑन -2q ड्यू टू q, ये किस तरफ होगा भाई साहब, इस तरफ है कि नहीं, ये वाला फोर्स किस तरफ होगा भाई साहब, ये वाला फोर्स होगा इस तरफ। ठीक है, समझ में आ रहा है, नेगेटिव और ये पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ठीक है, या इसको किस तरफ होगा एक्चुअली, फोर्स किस तरफ होगा, वेयर विल बी द फोर्स, ये वाला फोर्स किधर होगा, देखो ये -2q तो इधर होगा। ठीक है, तो ये वाला फोर्स भाई साहब इस तरफ और ये वाला फोर्स इस तरफ। ठीक है, तो आपका कितना हो गया बोलो, ये 1/4πε0 q इंटू 2q का मल्टीप्लीकेशन अपॉन 3/4 r का स्क्वायर। ठीक है, सो दैट विल बी हाउ मच, 1/4πε0, इधर हो गया आपका 2q स्क्वायर अपॉन ये 4 उधर गया ना, 4 उधर चला गया और इधर कितना रह गया 3r स्क्वायर, तो 4 2 ज़ा 8/3r, यही होगा ना, 4 और इधर 2 है तो 4 2 ज़ा 8 हो गया और इधर 3r स्क्वायर। ठीक है, नाउ फोर्स ऑन -2q ड्यू टू +2q, ये कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी 1/4πε0 2q इंटू 2q अपॉन, इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r -3/4r, सो दैट विल बी हाउ मच, r/4, समझ में आ रहा है ये, सो दिस विल बी r/4 का स्क्वायर, so this is going to be 1/4πε0 8q का स्क्वायर r का स्क्वायर, ये 16 ऊपर गया तो इंटू 16। ठीक है, 16 और ये हो गया भाई साहब आपका r का स्क्वायर। ठीक है, ओके, सो आपका रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा भाई साहब, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू ये माइनस ये। ठीक है, कोई भी फोर्स, तो आपने भाई साहब 1/4πε0 को बाहर निकाला, q स्क्वायर बाई r स्क्वायर दोनों में भी है, इसको भी बाहर निकाला, q स्क्वायर बाई r स्क्वायर को बाहर निकाला, और क्या बचा अंदर में, देखो दिस विल बी 16 इंटू 8, तो 16 इंटू 8 -8/3। ठीक है, -8/3, क्लियर है, समझ में आ रही है, तो ये हो गया आपका कितना 9 इंटू 10⁻9 q स्क्वायर बाई r स्क्वायर, q की वैल्यू कितनी हो गई, स्क्वायर मतलब हो गया 4 इंटू 10⁻12 अपॉन r का स्क्वायर भाई साहब कितना हो गया, ये r इज हाउ मच, हम 4 इंटू 16 टू 8 ना, ठीक है, कितना हो गया भाई साहब, ये 4 इंटू आपका r स्क्वायर हो गया 4 इंटू 10⁻4, कैंसलम, और अंदर कितना बचेगा बोलो, 8 6 ज़ा 48, बेकार सवाल है यार ये तो एकदम से, 8/3। ठीक है, ओके, तो ये हो गया आपका कितना 9 इंटू 10⁻, कितना हो गया देखो, 9 - 12 इज -3 -4 दैट विल बी +1। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है, 9 - 12 हो गया आपका -3 -4 हो गया आपका +1। ठीक है, तो ये हो गया +1 इंटू इधर कितना होगा देखो, 8 3 ज़ा 128 इंटू 3, 8 3 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6 7 8, 3 1 ज़ा 3, 384 -8/3, so that will be how much, 8 plus 6 14 7 376, so that will be 376/3, तो ये हो गया 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा कितना हो गया भाई साहब 12, 7 4 ज़ा 28 29,
3 3 9 10 11 ऐसा कुछ आ जाएगा भाई साहब आपका आंसर, ठीक है। 11920 11920 न्यूटन। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 10 माइक्रोकूलम चार्ज इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जेई मेन का सवाल 2023 का, ठीक है। एंड प्लेस्ड एट 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस सो दैट द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम, ठीक है। द चार्जेस ऑफ द 2 पार्ट्स आर, क्या हो जाएगा बोलो? देखो इसको ऐसे समझो, यहां पे आपका एक चार्ज, लेट यहां पे 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है, इसको आपने डिवाइड किया है। एक समझ लो, अगर 1 माइक्रोकूलम हो तो दूसरा कितना होगा? 9 माइक्रोकूलम। अगर एक 2 माइक्रोकूलम का हुआ तो दूसरा कितना होगा? 8 माइक्रोकूलम, ठीक है। सो लेट वन चार्ज बी ऑफ Q माइक्रोकूलम, ठीक है। इतना हो गया। तो भाई साहब दूसरा चार्ज क्या हो जाएगा? देयरफॉर अदर चार्ज इज ऑफ कितना हो जाएगा? बोलो 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 बोलो। अरे अभी तो बोला मैंने आपको, 10 माइनस क्यू हो जाएगा, ठीक है। सो दैट विल बी 10 माइनस क्यू माइक्रोकूलम, ठीक है। क्लियर है? ओके। अभी आपको क्या करना है? फोर्स, व्हाट इज द फोर्स दैट वुड बी एग्जिस्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी इक्वल टू K, लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, दैट विल बी हाउ मच? KQ इंटू 10 माइनस क्यू अपॉन R का स्क्वायर। अभी यहां पे देखो, आपको क्या निकालना है? मैक्सिमम फोर्स। और ये फोर्स किसका फंक्शन है? चार्ज का, ठीक है। तो अपन को क्या निकालना है? आपको मालूम है ना, मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है? 0। dF बाई डी क्यू अगर हम करें तो ये 0 होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? तो अभी आप यहां पे कर लो भाई साहब dF बाई डी क्यू, ठीक है। तो ये वाला तो भाई साहब पूरा आपका कांस्टेंट हो गया, ठीक है। दिस इज बेसिकली कांस्टेंट। तो ये जैसे का तैसा भाई साहब बाहर आया, K बाई R का स्क्वायर। अभी हम यहां पे कर रहे हैं क्या? D बाई डी क्यू ऑफ 10Q माइनस D बाई डी क्यू ऑफ Q का स्क्वायर, D बाई डी क्यू ऑफ Q का स्क्वायर। तो ये DF बाई डी क्यू, ये कितना हो जाएगा बोलो? K बाई R का स्क्वायर। इधर कितना हुआ? 10 माइनस 2Q, ठीक है। अभी इसको अगर हम 0 करते हैं तो ऑब्वियसली ये तो कांस्टेंट है, तो 10 माइनस 2Q की वैल्यू 0, मतलब 2Q की वैल्यू 10, मतलब Q की वैल्यू कितनी? 5। इसको ऐसे कर सकते हो, या लॉजिकली अगर आप देखोगे, देखो यहां पे F क्या है? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कूलम्स लॉ क्या बोल रहा है? Q1 Q2, है कि नहीं? अभी देखो, अगर मैंने यहां पे 1 लिया, 1 माइक्रोकूलम, तो ये कितना होगा? 9। 1 इंटू 9 कितना आ रहा है? 9। अगर 2 लिया, 2 इंटू 8 कितना आ रहा है? 16। 3 लिया, 3 इंटू 7 कितना आ रहा है भाई साहब? 21। 4 लिया, 4 इंटू 4 इंटू 6 हो जाएगा ना, 24। 5 करो, 5 इंटू 5, ये आपका मैक्सिमम आ रहा है, देखो 25। जब चार्जेस की वैल्यू 5-5 माइक्रोकूलम की हो तो फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। तो आपका कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा भाई साहब? दिस विल बी द राइट ऑप्शन। क्लियर है ये? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आ रहा है ये, ठीक है। ओके। चार्जेस ऑन 2 आइडेंटिकल मेटल बॉल्स Q and 3Q, they are kept at some distance after an initial contact, ठीक है। What is the ratio of the initial to the final force, ठीक है। तो चलिए भाई साहब यहां पे दो, let's say these are 2 balls, one is basically Q and the other one is how much? 3Q, ठीक है। ये दो चार्जेस हैं, इनको हमने किसी डिस्टेंस पे रखा हुआ है। let's say we have kept them at a certain distance, let's say हमने R डिस्टेंस पे इनको रखा हुआ है, ठीक है। अभी हमने इनको टच नहीं कराया, तो फोर्स क्या हो जाएगा बोलो? फोर्स इनिशियल, दैट विल बी KQ इंटू 3Q अपॉन R का स्क्वायर, ठीक है। अभी जैसे ही आपने इनको टच करा दिया, हो गया भाई साहब? ओके। तो यहां पे इनिशियल फोर्स ये हो गया, ठीक है। ओके ओके ओके। तो ये हो गया कितना भाई साहब? दिस विल बी हाउ मच? K 3Q का स्क्वायर बाई R का स्क्वायर, ये हो गया इनिशियल। अभी भाई साहब आप इन दोनों को कांटेक्ट में ला रहे हैं, तो कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा? आइडेंटिकल बॉल्स हैं, ठीक है। आइडेंटिकल बॉल्स, मेटल बॉल्स हैं, तो क्या होगा? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कितना टोटल चार्ज है? 4Q का। कद्दू कटेगा, दोनों में बटेगा, तो ये हो गया भाई साहब 2Q 2Q। समझ में आ रहा है ये?
सो बोथ ऑफ विल नाउ एक्वायर अ चार्ज ऑफ 2q ईच, ठीक है। तो आपका भाई साहब फाइनल फोर्स आफ्टर द कॉन्टैक्ट ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, ठीक है, दिस विल बी k 2q इंटू 2q अपॉन r का स्क्वायर। आर बी क्लियर ऑन दिस वन? अंकिता आई थी ना, कौन खड़ा था तुम्हारे साथ वहां पर? ओके 2q, तो ये कितना हो गया भाई साहब आपका k 4q का स्क्वायर बाई r का स्क्वायर, ये हो गया आपका फाइनल फोर्स, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या पूछा है, इनिशियल टू फाइनल फोर्स, इनिशियल टू फाइनल फोर्स यहाँ पे कितना हो गया k 3q का स्क्वायर बाई r का स्क्वायर, k 4q का स्क्वायर बाई r का स्क्वायर, कैंसलम 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 कैंसलम, तो ये हो गया 3/4, तो ये हो जाएगा 3:4। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? आर वी एबल टू अंडरस्टैंडम? समझम? चलिए भाई साहब, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स acting between a proton and an electron distance r from each other is approximately। ये तो मतलब आपका सवाल करने लायक सवाल भी नहीं है, फटाफट सॉल्व हो जाना चाहिए। अरे देखो ना भाई साहब, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे मतलब इसका मैं बता, तो चलिए करते हैं इसको। रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बिटवीन अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो दोनों के चार्जेस तो सेम ही है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर, है ना, लिख सकते हैं ये अपॉन आर का स्क्वायर, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा बोलो, G m1 m2 मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन आर का स्क्वायर। तो G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। mass of proton is how much people? Mass of proton is 1.67 into 10⁻⁻27 kg होता है, और mass of electron 9.1 into 10⁻⁻31 अपॉन भाई साहब ये क्या हो गया r का स्क्वायर, ठीक है। किसका रेशियो पूछा है, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए तो इसका मतलब क्या पूछा है, ratio that has been asked to you is ratio of electrostatic force to gravitational force, that will be how much, 1/4 pi epsilon naught 1.6 into 10⁻⁻19 का भाई साहब स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर। इधर कि अच्छा इसको अपन क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻⁹, सो ये हो गया आपका 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। और इधर कितना हो गया बोलो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 1.67 10⁻⁻27 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 अपॉन आर का स्क्वायर। कैंसलम कैंसलम फटाफट से करते हैं। इसमें देखो यहाँ पे 9 इंटू 10⁻9 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 2.56, ठीक है, इंटू 10⁻⁻38, ठीक है, अपॉन 6.67 इंटू 1.67, ठीक है, इंटू 9.1, ठीक है, इंटू इधर कर लो भाई साहब 10⁻⁻11 10⁻⁻11 -27 -31। तो भाई साहब 9 2 हो जाएगा 18, और इधर भी देखोगे अगर इधर कितना आ जाएगा देखो 9 इंटू 2 18, यहाँ पे 6 इंटू 1 अप्रोक्सीमेटली 9 9 जा 81 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो 18/81 का कितना आ जाएगा, एक आएगा नंबर जो भी है, ठीक है। तो 18/81 ना, तो 0 पॉइंट कुछ आएगा भाई साहब, 0.1 कुछ आया नंबर, ठीक है, इंटू इसको करो भाई साहब 9, ये हो गया 9 - 38 कितना हो जाएगा बोलो, दैट विल बी -29, और इधर कितना हो गया बोलो -11 -27 -31 7 + 1 8 19 2 + 3 5 1 6 -69, तो ये हो जाएगा आपका +69, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटू 10⁻69 -29 कितना हो गया आपका 40, है ना, +40, और यहाँ पे 0.a है, तो मतलब आपको इसको इधर लाना है, तो एक यूज़ कर लेंगे आप, तो 10⁻39 हो जाएगा, ठीक है, a.00 कुछ आएगा, तो 10⁻39 वुड बी द राइट आंसर। यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर पूछा है आपसे, साइंटिफिक नोटेशन में आप पहला डेसिमल प्लेस पे लाते हैं, तो ये हो जाएगा 10⁻39, ठीक है।
क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपलम? ओके ओके ओके। Two pit balls each carrying charge plus q are hung from a hook by two strings. It is found that when each charge is tripled, angle between the strings double. Okay. वेस्ट बंगाल जेई का भाई साहब सवालम सवालम सवालम। यहाँ पे भाई साहब दो पिट बॉल्स हैं, ठीक है, और लेट से भाई साहब यहाँ पे ये एक पिट बॉल और ये एक पिट बॉल, और इधर क्या है भाई साहब आपका, दिस इज लेट से, ये हो गया आपका थीटा, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये एक डिस्टेंस हो गया, लेट्स से आपका ये वाला डिस्टेंस हो गया x और ये वाला डिस्टेंस हो गया आपका x, ठीक है। ओके, टू बिट बॉल्स ईच कैरिंग अ चार्ज ऑफ प्लस q, ठीक है, दीज आर कैरिंग अ चार्ज ऑफ प्लस q, दे आर हंग फ्रॉम अ सीलिंग। टू बिट बॉल्स ईच कैरिंग अ चार्ज ऑफ प्लस q आर हंग फ्रॉम अ हुक बाय टू स्ट्रिंग्स। इट इज फाउंड दैट व्हेन ईच स्ट्रिंग इज, तो यहाँ पे लेट्स से इसका लेंथ ले रहे हैं अपन l, ठीक है, इसका लेंथ ले रहे हैं l। इट इज फाउंड दैट व्हेन ईच चार्ज इज ट्रिपल्ड, मतलब हमने 3q कर दिया, द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग्स डबल। What was the initial angle between the two strings? ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। ओके, तो पहले तो भाई साहब यहाँ पे चार्ज, इट इज फाउंड दैट व्हेन ईच चार्ज इज ट्रिपल्ड एंगल बिटवीन देम इज डबल, तो ये थीटा एंगल चेंज हो रहा है, तो हमको बेसिकली चार्ज और थीटा के बीच में एक रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करना है, ठीक है, चार्ज और थीटा के बीच में। ओके, बताओ मेरे को भाई साहब यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरफ होगा, ठीक है, दिस विल बी दिस साइड, और बोलो भाई साहब ये आपका देखो ये थीटा है, तो ये हो गया आपका थीटा, ये टेंशन है ना भाई साहब, ठीक है, तो टेंशन इस तरफ हुआ, mg भाई साहब किस तरफ हुआ, इधर, ठीक है, तो आपका टेंशन तो भाई साहब ये हो गया, तो आपका इधर कितना हो जाएगा, देखो f, दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, f आपके किसको बैलेंस कर रहा है, ये आपका t है लेट्स से, ठीक है, t है अगर ये, तो ये आपका थीटा है, तो ये वाला आपका थीटा हो गया, सो दिस विल बी t cos थीटा, और इधर हो जाएगा भाई साहब आपका t sin थीटा, ठीक है, तो t cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, m इंटू जी को, और t sin थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। तो अगर हम इसको करें तो यहाँ पे आ गया tan थीटा इज इक्वल टू कितना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन mg। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, ओके, ये हो गया आपका tan थीटा। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है दोनों के बीच में, बोला बोला जल्दी से बोला, के Q का स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर, है कि नहीं, ओ ये R तो अपन ने लिया ही नहीं, चलिए समझिए, अगर समझ लो ये R है पूरा, दिस इज बेसिकली R, ठीक है, अपॉन R का स्क्वायर, ठीक है, तो ये वाला कितना होगा बोलो, दिस वन विल बी हाउ मच, R/2 होगा, है कि नहीं, ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे अपन को F, तो इस R को अपन को अगर समझ लो, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, R/L इज इक्वल, सॉरी R/2L, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो R/2 अपॉन L इज इक्वल टू साइन थीटा, तो R/2L इज इक्वल टू साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, तो R की वैल्यू कितनी हो गई, 2L साइन थीटा, सो R की वैल्यू हो गई, ये हो गया K Q स्क्वायर बाई R का स्क्वायर, दैट इज 2L साइन थीटा का स्क्वायर, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं, tan थीटा की वैल्यू हो गई के क्यू का स्क्वायर बाई 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये लिख सकते हैं भाई साहब, के क्यू का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर, दैट इज 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये आपका हो गया भाई साहब tan थीटा, लिख सकते हैं, और mg। क्लियर 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 पीपलम, भाई इसको देखो, इसको यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डाल सकते हैं, दिस इज बेसिकली द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के क्यू स्क्वायर 4L का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये बचा mg, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके, अरे भाई साहब ओके बोला ना, तो अपना को अगर हमने इधर किया, इसको देखो यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू टैन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू टैन थीटा, हमको थीटा और क्यू के बीच में रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करना है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू टैन थीटा, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, ये के mg अपॉन 4L स्क्वायर, ठीक है, के mg अपॉन 4L स्क्वायर, और इधर क्या है भाई साहब आपका q का स्क्वायर, ये पूरा एक कांस्टेंट मान सकते हैं हम, k क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
m आपके मासेस ऑफ द पिट बॉल्स, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 4 एक कांस्टेंट हो गया और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग भी आपका एक कांस्टेंट हो गया। तो अपन यहाँ पे क्या मान सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इंटू टैन थीटा इज इक्वल टू अल्फा क्यू का स्क्वायर, वेयर अल्फा इज इक्वल टू k बाई 4mgl का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा टू टैन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, सवाल यहाँ पे अटक जाता है यूं, क्योंकि देखो यहाँ पे अपने को देखना है क्या पूछा जा रहा है। देखो, व्हेन ईच ऑफ द चार्जेस इज ट्रिपल्ड, अगर हमने चार्जेस को ट्रिपल किया तो q का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9q स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, अगर हमने यहाँ पे किया भाई साहब, देखो यहाँ पे क्या होगा, अरे भाई साहब क्या होगा बता रहा हूं मैं। देखो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते कि नहीं, साइन स्क्वायर थीटा 1 टैन थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 2 टैन थीटा 2 इज इक्वल टू q1 का स्क्वायर अपॉन q2 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते कि नहीं। इस रेशियो का रेशियो कितना आ जाएगा, चार्जेस आर ट्रिपल, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या आ जाएगा 1/9। ठीक है, समझ में आ रहा है ये। अब तुमको यहाँ पे ये देखना है कि भाई साहब what was the initial angle between the two strings। ठीक है, it is found that when each charge is triple, angle between the strings double। अब तुमको थोड़ा सा यहाँ पे गेस वर्क करना है, ये रेशियो तो तुमको आ गया। ठीक है, अभी अगर मैं 30 का लूं तो साइन स्क्वायर 30 कितना होता है बोलो, 1/4। ठीक है, और टैन 30 कितना होता है बोलो, बोलो ना बोलो, टैन 30 1/√3। ओके चलिए, साइन स्क्वायर अभी डबल हो गया, साइन स्क्वायर 60 है ना भाई साहब, एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग्स डबल, तो यहां पे भाई साहब 1 बाई, तो ये हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर, कितना 3/4। चलिए भाई साहब 3/4। ठीक है, और tan 60 की वैल्यू √3। ओके चलिए भाई साहब, ठीक है, ये 4 गया ऊपर भाई साहब। ठीक है, तो आपका हो गया 1/4 इंटू 1/√3। ठीक है, और नीचे क्या आ गया भाई साहब आपका √3, और ये हो गया भाई साहब आपका 1/3। ठीक है, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब क्या कर रहे भाई साहब। तो ये 4 गया ऊपर, 4 इंटू 1/4 इंटू 1/√3 अपॉन यहाँ पे कितना हो गया 3 इंटू √3, ये 4 कैंसिल, हम ये 1 यहाँ पे कितना हुआ 3 इंटू ये वाला √3 भी नीचे आया, और √3 कितना आ रहा है देखो 1/9, टड़ंग टड़ंग, तो इसका मतलब आंसर आपका 30 डिग्री। समझ में आ रहा है? ये थोड़ा सा घुमावदार सवाल है, यहां पे आपको इस फाइनल स्टेज पे आना है और उसके बाद चेक करना है कि कहां पे ये हो रहा है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता हूं? ओके ओके ओके, the ratio of magnitudes of electrostatic force between two protons at a distance r apart to that between two electrons at the same distance of separation। भाई साहब ये मौखिक सवाल है, लिखित सवाल भी नहीं है। चलिए इसको जरा कीजिए फटाफट। क्या नहीं है, 1:1 होगा, सिंपल बता रहा हूं यहाँ पे देखो, दिस विल बी 1:1, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स। तो आपका भाई साहब टू प्रोटॉन्स के बीच में कितना होगा 1/4πε0 और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर, क्योंकि प्रोटॉन्स का चार्ज भी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी उतना ही होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स दैट विल बी आल्सो 1/4πε0 ई का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर। तो ये दोनों भी भाई साहब क्या हो जाएंगे 1:1, सिंपल। ठीक है, ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब ये वाला सवाल करना है। टू इक्वल पॉइंट चार्जेस each of 3 microcoulomb are separated by certain distance in meters। ठीक है, they are located at I plus j plus k and 2I plus 3j plus k, then the electrostatic force between them कितना हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है भाई साहब, देखो एक A पॉइंट है जिसका I plus j plus k दिया हुआ है, और दूसरा है भाई साहब आपका B that is 2I plus 3j plus k। ठीक है, तो आपका ए बी कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 2i माइनस आई, तो ये हो गया i कैप, 3j माइनस जे दैट इज 2j कैप, और ये हो गया 0। तो ए बी डिस्टेंस आपका कितना हो गया
I प्लस 2, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलो, ए बी मॉड, दैट विल बी हाउ मच, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट विल बी हाउ मच 5। तो ये डिस्टेंस हो गया आपका 5, ठीक है, √5 बेसिकली। बस कर लो आपका यहाँ पे देखो 3 माइक्रोकूलम, 2 इक्वल पॉइंट चार्जेस, तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q का स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर, दैट विल बी 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 10⁻⁻6 का स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर, दैट इज √5 का स्क्वायर। तो ये हो गया 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 9 इंटू 10⁻12 और यहाँ पे हो गया आपका 5। तो इधर हो गया कितना भाई साहब आपका, दैट विल बी 81/5 है ना, इंटू 10⁻⁻3, यहाँ तो कोई भी नहीं है भाई साहब, अच्छा है ठीक है, 16 5 82 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो आपका पहला वाला ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। समझम बच्चा पार्टी, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। 2 particles of charges plus E and plus 2E are 16 centimeter away from each other. Where should another charge be placed between them so the system remains in equilibrium? ठीक है, ओके भाई साहब। तो ये हो गया भाई साहब, यहाँ पे 2 चार्जेस हैं, 2 particles ऑफ चार्जेस E, और ये हो गया आपका भाई साहब प्लस 2E, ठीक है, प्लस E एंड प्लस 2E आर 16 सेंटीमीटर अवे। सो ये कितना डिस्टेंस है भाई साहब आपका, 16 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ईच अदर। वेयर शुड अनदर चार्ज Q बी प्लेस, तो लेट्स से Q को हमने इधर डाला, ठीक है, अनदर चार्ज Q बी प्लेस, तो सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। तो आपने समझ लो भाई साहब, इसको मान लिया x, ये हो गया x, तो ये वाला कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 16 माइनस x, ठीक है। तो लेट्स से ये A हो गया, ये B हो गया और ये हो गया आपका C, ठीक है। तो फोर्स ऑन B ड्यू टू A, ये कितना हो जाएगा बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फोर्स ऑन B ड्यू टू A 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया आपका Q, ये हो गया E अपॉन कितना भाई साहब x का स्क्वायर, समझम, ठीक है, ओके। और फोर्स ऑन A ड्यू टू B, ठीक है, ये कितना हो जाएगा बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नहीं फोर्स ऑन B, फोर्स ऑन B ड्यू टू C, ये कितना हो जाएगा बोलो, Q इंटू 2E अपॉन 16 माइनस x का स्क्वायर। नाउ क्योंकि ये तीनों सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो ये वाला फोर्स विच इज बेसिकली फोर्स ऑन B ड्यू टू A विल बी इक्वल टू ये वाला फोर्स विच इज बेसिकली फोर्स ऑन B ड्यू टू C, ठीक है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, फोर्स BA विल बी इक्वल टू फोर्स BC, so that will be equal to 1/4 pi epsilon naught QE by x का स्क्वायर, ठीक है, is equal to 1/4 pi epsilon naught Q2E by 16 माइनस x का स्क्वायर। ये कैंसिल Q कैंसिल E कैंसिल, ठीक है। तो 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2/16 माइनस x का स्क्वायर, टेकिंग रूट्स ऑन बोथ साइड्स, तो आपका क्या हो जाएगा बोलो, 1/x इज इक्वल टू √2/16 माइनस x, तो 16 माइनस x इज इक्वल टू √2 इंटू x। तो भाई साहब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, √2 प्लस √2x प्लस x, ये हो गया आपका 16, तो ये हो गया √2 प्लस 1 इंटू x इज इक्वल टू 16। सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 अपॉन √2 प्लस 1। समझ में आ रहा है ये, √2 कितना हो जाएगा भाई साहब, देखो 16 अपॉन √2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.41 प्लस 1, सो दैट विल बी 16 अपॉन 2.41। अप्रोक्सीमेट देखो कितना आ जाएगा, देखो अगर हम यहाँ पे मानकर चले, क्लोजेस्ट आंसर इज दिस वन, ठीक है, 2, ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 3, तो यहाँ पे आपका 3 6 इसके पास आ रहा है आंसर, और तो कोई सब आजू बाजू भी नहीं है, सो दिस वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है पीपल, ओके। The electrostatic force acting between 2 point charges kept at a certain distance in vacuum is 16 न्यूटन। तो आपका भाई साहब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है, 16 न्यूटन का है। वैक्यूम में जब होता है तो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, जो भी है आपका Q
1Q2 अपॉन R का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 न्यूटन। ये है भाई साहब आपका, ठीक है। ओके, जब आप किसी मीडियम में, इफ द सेम टू चार्जेस आर केप्ट एट द सेम डिस्टेंस इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब देखो होता क्या है, देखो मीडियम में होगा तो क्या होगा, 1/4 पाई परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इंस्टेड ऑफ एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है बच्चा बाड़ी, एनीवन? अरे भाई साहब, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। मतलब क्या हो जाएगा, अगर आप करेंगे f ऑफ मीडियम, सॉरी f इन वैक्यूम अपॉन f इन मीडियम, वैक्यूम और एयर स्पेस, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहां पे हो गया Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, यहां पे भी हो गया आपका Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, ये कैंसलम कैंसलम कैंसलम, तो ये कितना आ गया, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट विल बी हाउ मच, K, ठीक है। तो फोर्स इन वैक्यूम, ठीक है, तो हम यहां पे बोल सकते हैं फोर्स इन वैक्यूम और एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू K, ठीक है। ओके, सो अपन क्या बोल सकते हैं भाई साहब, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम विल बी इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम और एयर अपॉन K, ऐसा लिख सकते कि नहीं। अभी यहाँ पे फोर्स इन वैक्यूम और एयर कितना दिया हुआ है, 16 न्यूटन, तो ये हो गया 16 न्यूटन अपॉन 8 इज इक्वल टू फोर्स इन मीडियम। सो फोर्स इन मीडियम कितना हो जाएगा भाई साहब, 2 न्यूटन, ठीक है। दिस वुड बी द राइट आंसर। क्लियरम पेपरम, ठीक है, 2 न्यूटन हो गया ये। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? बहुत बढ़िया भाई साहब। अभी अपन जाते हैं किस में जाएंगे भाई साहब, थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। ओके, सो वी विल डू सम प्रॉब्लम्स इन थर्मोडायनेमिक्स। व्हाट इज zeroth लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? हाँ सही बोल रहा है, बोल। ओके, समझो भाई साहब, कोई ए है और ये एक सिस्टम बी के साथ इक्विलिब्रियम में है, थर्मोडायनेमिक मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम है, और ए है सी के साथ, तो बी और सी भी इक्विलिब्रियम में होंगे, दैट इज। और आपका सेकंड लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ क्या है, ये तो zeroth लॉ हो गया। फर्स्ट लॉ क्या है, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, ठीक है। वर्क डन अगर बाय द सिस्टम होगा तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब करते हैं इसको। फर्स्ट एंड zeroth लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे अपन करेंगे, ठीक है। ओके, 1 ग्राम ऑफ अ लिक्विड, जेई मीन्स का सवाल है, देखो, ऑफ अ लिक्विड इज कन्वर्टेड टू वेपर एट 3 × 10⁵ पास्कल प्रेशर if 10% of the heat supplied is used for increasing the volume by this much during this phase change, then the increase in internal energy in the process would be, ठीक है। कैसे करेंगे भाई साहब, आपको मालूम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, डेल्टा Q that is heat supplied will be equal to increase in internal energy plus work done by the process, ठीक है। ओके, 1 ग्राम ऑफ अ लिक्विड, तो मास कितना दिया हुआ है यहाँ पे भाई साहब आपका 1 ग्राम, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू 10 इंटू, जरूरत नहीं पड़ेगी यार, चलो देखते हैं। प्रेशर आपका कितना दिया हुआ है भाई साहब, 3 × 10⁵, ठीक है। तो प्रेशर आपका दिया हुआ है 3 × 10⁵ पास्कल। पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बोथ आर द सेम, पास्कल लिख दो या तो भाई साहब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, इंक्रीज इन वॉल्यूम, डेल्टा वी कितना है, डेल्टा वी इज 1600 सेंटीमीटर क्यूबिक, दैट कैन बी डन एज 1600 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूबिक, लिख सकते हैं, बोलो मीटर क्यूबिक, वॉल्यूम में चेंज, ठीक है। ओके, तो मतलब हो गया आपका 1.6 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूबिक, ये हो गया आपका डेल्टा वी, ठीक है। ओके, देन द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, तो डेल्टा W कितना हो जाएगा बोलो, वर्क डन कितना हो गया बोलो, दिस विल बी P डेल्टा V, है ना। प्रेशर कितना है 3 × 10⁵ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻3, सो दैट विल बी हाउ मच, 16 3 4.8 और 10⁵ और 3, तो ये हो गया 10⁻², ठीक है। ये हो गया आपका डेल्टा W, ठीक है, तेरे। ओके, और क्या दिया हुआ, 10% ऑफ द हीट सप्लाइड इज यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ड्यूरिंग दिस फेज चेंज। 10% मतलब आपका हीट जो सप्लाइड है, एक काम करेगा क्या भाई सर, इस प्लग को उसमें लगा देगा क्या,
ये लटक रहा है पर, भाई शाबाश शाबाश। और स्विच कौन देगा? थैंक यू। ठीक है, ओके, तो ये हो गया डेल्टा, ये हो गया आपका डेल्टा डब्ल्यू 4.8 इंटू 10⁻²। 10% ऑफ द हीट सप्लाइड इज यूज फॉर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम। मतलब ये जो वर्क डन हो रहा है इसमें 10% हीट यूज हो रहा है। मतलब कैसा है बोलो, यहां पे ये जो डेल्टा क्यू है, ठीक है, इसका भाई साहब 10% वर्क डन में यूज हो रहा है, मतलब 0.1 ऑफ डेल्टा डब्ल्यू। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच, तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, दिस, देखो यहां पे दिया हुआ 10% ऑफ द हीट सप्लाइड जो भी है उसका 10% फॉर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ड्यूरिंग दिस फेज चेंज, द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा? तो डेल्टा क्यू हो गया आपका 0.1 डब्ल्यू। चलिए भाई साहब इसको करते हैं अपन, तो भाई साहब यहां पे हो गया आपका डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अभी अगर हम यहाँ पे बोले 10% ऑफ द हीट सप्लाई, तो 10% मतलब 0.1, ये हो गया डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है, इधर हो गया, और ये हो गया आपका डेल्टा यू, ठीक है, प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। इसको इधर ले लो भाई साहब, डेल्टा यू विल बी इक्वल टू 0.9 डेल्टा डब्ल्यू माइनस 0.9 डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा यू कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 0.9 इंटू डेल्टा डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब हो गया आपका 4.8 इंटू 10⁻²। सो 8 9 जा 72, 9 4 जा 36, 36 37 38 39 40 41 42 44 32, ठीक है, 432, और ये हो गया 0.2 इंटू 10⁻² है ना। सो आपका आ गया भाई साहब 4320 जूल्स, ये हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे इंटरनल एनर्जी बेसिकली क्या हो रही है, वर्क, तो इंटरनल एनर्जी नेगेटिव में आएगी आपकी, ठीक है। एक्चुअली में इस इक्वेशन में ये माइनस में होगा, ठीक है, दिस विल बी इन माइनस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क ड्यूरिंग द फेज चेंज देन इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी, द प्रोसेस विल बी हाउ मच, 4320 जूल्स। ये आपका भाई साहब इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम क्लियर, ओके। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है जेई मेंस में, given below are two statements, one is labeled as assertion, if dq and dw represent the heat supplied to the system and the work done on the system। जब भी work done on the system होगा तभी आपका work done क्या होगा, नेगेटिव होगा। देखो यहां पे भी आपने क्या किया है, work done on the system है, इसीलिए वो नेगेटिव है, ठीक है। तो work done on the system है पीपल, dq, ठीक है, और dw, ठीक है। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, dq वर्क डन ऑन द सिस्टम विल बी नेगेटिव, तो यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, du माइनस dw हो जाएगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम में, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव होता है, ठीक है। सो इफ dq and dw represent the heat supplied to the system and the work done on the system, then according to the first law of thermodynamics, क्या ये करेक्ट है? करेक्ट है भाई साहब, ठीक है, ओके। रीजन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये आपका कंजर्व्ड है, ठीक है। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज, तो आपका भाई साहब असर्शन भी राइट है और रीजन भी राइट है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। लेकिन एक दिक्कत है कि यहाँ पे सीक्वेंस आपका अलग है, ठीक है। आप अगर देखोगे सीबीएसई में सीक्वेंस आपका ये ए होना चाहिए था, ये तो ध्यान रखना, ठीक है। सीबीएसई में क्या होता है कि असर्शन राइट, रीजन राइट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, टू ए होता है, लेकिन यहाँ पे देखो डी में है ये, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बोथ assertion and reason are correct and R is the correct explanation of A, so यहाँ पे D ऑप्शन होगा, ठीक है। अंधाधुन A मत मार्क कर देना, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब जेई मेंस का सवाल है, देखो, द प्रेशर ऑफ गैस चेंजेस लीनियरली विथ वॉल्यूम फ्रॉम A to B if no heat is supplied to or extracted from the gas, then the change in the internal energy of the gas। चलिए भाई साहब एकदम आसान सा सवाल, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करें। फर्स्ट लॉ, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। यहां पे क्या दिया हुआ है, देखो, नो हीट इज सप्लाइड और एक्सट्रैक्टेड, तो मतलब डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, मतलब डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ डेल्टा यू। क्या ये समझ में आ रहा है, माइनस ऑफ डेल्टा यू, ओके। तो मतलब आपका जो हीट एनर्जी होगा वो नेगेटिव होगा। इसका आंसर सिंपल ये दिख रहा है, लेकिन फिर भी कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या ये होगा, नहीं होगा, ठीक है। हम देखेंगे क्यों नहीं होगा, ठीक है। हमारा जनरल असम्पशन क्या रहेगा कि भाई साहब अरे माइनस है तो ये इकलौता माइनस दिख रहा है,
इस पर टिक कर दो, नहीं होगा ये, देयर इज अ रीजन व्हाई इट विल नॉट हैपन, क्योंकि आपका जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, एरिया अंडर पीवी ग्राफ, ठीक है, पीवी ग्राफ के नीचे जो एरिया है, ठीक है भाई साहब, ये भाई साहब एरिया है, ठीक है, दिस इज बेसिकली पीवी ग्राफ। ये क्या है, आपका एक ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब ये और ये है ना, तो ये लेट्स से आपका P1 हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दैट इज P1 ये हो गया, और ये लेट्स से आपका P2 हो गया, ठीक है, P1 प्लस P2 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज V2 माइनस V1, ठीक है, P1 प्लस P2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो गया, हाफ इंटू P1 प्लस P2, कितना हो गया भाई साहब, ये दिस विल बी 50, और ये हो गया आपका कितना, ये कितना दिख रहा है भाई साहब मेरे को, तो 10, चलिए 50 प्लस 10 है ना, 50 प्लस 10, और अच्छा देखो भाई साहब, ये ग्राफ का डायरेक्शन देखो, ठीक है, एक ग्राफ ऐसे यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो इसका मतलब तुम्हारा P1 कौन सा होगा भाई साहब, ये तुम्हारा होगा V1 और ये तुम्हारा होगा V2, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये इधर जा रहा है ग्राफ, तो आपका होगा हाफ P1 प्लस P2, और ये वाला क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 होगा ये, ठीक है, V2 माइनस V1, ये तुम्हारा फाइनल हुआ, ठीक है, दैट इज 50 माइनस 200, 50 माइनस 200, और यहाँ पे हाफ P1 प्लस P2, दैट इज ये 10 ना, और ये 50, तो 10 प्लस 50, तो यहाँ पे कितना हो गया, गो हाफ इंटू 60 इंटू 150 माइनस 150 है ना, तो ये हो गया 3, तो ये हो गया कितना भाई साहब, 450 है ना, 450 चूज सही आ रहे भाई साहब, अपन 30 होगा ना ये, क्या हो गया, किलो पास्कल है, ओ किलो पास्कल भाई साहब, और ये वॉल्यूम किस में दिया है, ओ सीसी में दिया है ना, ओ चलिए भाई साहब, यहाँ पे हो गया आपका हाफ इंटू ये हो गया किलो पास्कल ना, मतलब आपका हो गया 10 और 50, तो ये हो गया 60 इंटू 10⁻3, और वॉल्यूम आपका कितना हो जाएगा, देखो माइनस 150 है ना, माइनस 150 सेंटीमीटर क्यूबिक है, इसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा किस में भाई साहब, मीटर क्यूबिक में, तो 150 सेंटीमीटर क्यूबिक मतलब 150 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूबिक, 150 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूबिक, ठीक है, कितना हो गया बोलो यहाँ पे, 30, और ये हो गया 45 माइनस 45 और 2 0 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻6, सो माइनस 4500 इंटू 10⁻⁻3, 1 2 3, तो ये हो गया माइनस 4.5 जूल्स, क्या आया ये आया भाई साहब आपका वर्क डन, है ना, नहीं, ठीक है, तो अपन का इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा W, ठीक है, सो इंटरनल एनर्जी मतलब आपका आ जाएगा माइनस 4.5 जूल्स, दैट विल बी हाउ मच, 4.5 जूल्स, तो ये आ गया आपका करेक्ट आंसर, इसमें अगर आपने टिक कर दिया होता गलत हो गया था, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता हूं, ओके ओके ओके। 5 मोल्स ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, जब भी आपको ऐसा सवाल दिया रहे ना, फटाफट माइंड में कन्वर्जन चलना चाहिए, मोनोएटॉमिक गैस के लिए Cp कितना होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोनोएटॉमिक गैस के लिए, अरे भाई साहब 3/2 R, ठीक है, और Cv कितना हो जाएगा, तो सॉरी ये 5/2 होगा, और Cv कितना हो जाएगा, 3/2 R हो जाएगा, गामा आपका 5/3 दैट इज 1.67 तक आएगा, ठीक है, Cp/Cv होता है गामा, ओके ओके। 5 मोल्स आपका यहाँ पे n कितना दिया हुआ है, 5 मोल्स ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस विद एन इनिशियल टेम्परेचर ऑफ 150, तो T1 की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 150, एक्सपैंड एंड इन द प्रोसेस ऑब्जॉर्ब, कितना हीट भाई साहब, कितना हीट ऑब्जॉर्ब किया इन्होंने, 1500 जूल्स ऑफ हीट, एंड 10 कितना वर्क डन हुआ है भाई साहब आपका, 2500 वर्क डन, ठीक है, द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस, तो यहाँ पे आपको T2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, ओके, R की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे,
ओके अपने यहां भाई साहब क्या है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। तो यहां पे डेल्टा यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा क्यू दैट इज 1500 माइनस, तो ये हो गया आपका 1000, माइनस में आ गया। डेल्टा यू की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस 1000 जूल्स। और डेल्टा यू क्या है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। ओके सो यहां पे देखो इंटरनल एनर्जी कितना हो गया 1000 का। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज, अरे बोला बोला, एनसीवी, क्या, डेल्टा टी, ये होता ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू डेल्टा टी इनटू नंबर ऑफ मोल्स, दिस इज इक्वल टू भाई साहब 1000, ठीक है, माइनस 1000 है। चलिए इसको अगर हम ऐसे करते हैं इंक्रीज इंटरनल एनर्जी, तो आपका भाई साहब यहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो, डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी 1000 अपॉन एन इंटू सी वी। 1000 हो गया ये हो गया 1000, और आपका एन कितना हो गया यहाँ पे 5 है ना, और सी वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2 इंटू आर, तो 3/2 इंटू आर दैट इज 8.314, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 7 3 जा 21, 5 3 जा 15, 16 17, 3 1 जा 3 1 4, 3 4 जा 12, तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना 12.471, ठीक है। 12 5 जा भाई साहब आपका कितना हो जाएगा बेसिकली, तो ये डेल्टा टी की वैल्यू देखो यहाँ पे ये हो गया अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, देखो 12 5 जा 60 अप्रोक्सीमेटली हो रहा है 60, और ये कितना है 1000 है, करंग करंग ट्रंग 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 ट्रंग, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, अप्रोक्सीमेटली 16.66 को जाएगा, ठीक है, ये जाएगा ना, 16 6 जा 96 और 4 6 6 जा 36, अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा, ठीक है। और इतना यहाँ पे डेल्टा टी कितना है बोलो, डेल्टा टी में मतलब आपका T1 माइनस T2 है ना, तो आपका भाई साहब यहाँ पे 150 है, माइनस कितना है भाई साहब आपका T2, तो भाई साहब T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, T2 की वैल्यू हो जाएगी 150 माइनस 16.66, सो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 134 पॉइंट कुछ, 133 पॉइंट कुछ आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली आपका 134, दैट्स हाउ यू विल कैलकुलेट दिस, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। द zeroth law of thermodynamics leads to the concept of zeroth law आपका क्या है भाई साहब, व्हाट इज द zeroth law of thermodynamics, अरे वही ना भाई साहब, देखो ए अगर बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और ए अगर सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो बी और सी भी आपके थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे, तो मतलब ये किससे कनेक्टेड है, टेम्परेचर से, ठीक है, इट इज बेसिकली कनेक्टेड टू टेम्परेचर, ठीक है। तो zeroth law of thermodynamics leads to the concept of temperature, okay okay okay। चलिए भाई साहब यहाँ पे पीवी डायग्राम ऑफ अ गैस अंडरगोइंग इन साइक्लिक प्रोसेस आपको दिया हुआ है, ए बी सी डी ए इज शोन, पी और बी हो गया भाई साहब, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो आपको सब में देखो यहाँ पे वर्क डन निकालना है ना, वर्क डन, चलिए वर्क डन निकालते हैं, वर्क डन ए बी कितना हो गया, वर्क डन ए बी भाई साहब कितना हो जाएगा, P डेल्टा V है ना, P कितना है, P डेल्टा V, तो P आपका कितना है 2 इंटू 10⁵, डेल्टा V कितना हो जाएगा, V एट B माइनस V एट A, तो भाई साहब ओ भाई साहब 2 इंटू 10⁵, V एट B कितना है 4 माइनस 2, तो ये हो गया आपका 2, समझ में आ रहा है ये, तो दिस विल बी हाउ मच 4 इंटू 10⁵, 4 इंटू 10⁵ जूल्स हो गया ये, ठीक है, क्लियर है। वर्क डन बी सी कितना हो जाएगा, अरे बाबू कितना होगा, P डेल्टा V है, डेल्टा V कितना है 0, भाई यहां पे कोई वॉल्यूम में चेंज आ रहा है नहीं, P डेल्टा V में आपका ये हो जाएगा P इंटू 0 दैट विल बी 0, सिंपल, वर्क डन बी सी, ओके, वर्क डन सी ए ऐसे जा रहा है ये भाई साहब, सॉरी सी डी, ठीक है, ये हो जाएगा अगेन P डेल्टा V, अभी P यहां पे कितना है, प्रेशर इज हाउ मच 1 इंटू 10⁵, और डेल्टा V की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा V की वैल्यू हो जाएगी V एट D माइनस V एट C, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1 इंटू 10⁵, V एट D इज हाउ मच 2 माइनस V एट C दैट इज 4, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 इंटू 10⁵ जूल्स, ओके, वर्क डन फॉर प्रोसेस ए डी ए, ये आपका अगेन 0 हो जाएगा, तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, दिस
प्लस दिस, तो यहां पे कितना हो गया बोलो 2 इंटू 10⁵ जूल्स, दिस वुड बी द टोटल वर्क डन। 2 इंटू 10⁵, क्या हो गया भाई साहब, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। हाँ क्या बोल रहे हैं, अच्छा सेंटीमीटर क्यूबिक है, सेंटीमीटर क्यूबिक है साहब, गड़बड़ का डाला भाई साहब। तो अपने को भाई साहब इसको सेंटीमीटर क्यूबिक को मीटर क्यूबिक बनाना है ना, तो इंटू 10⁻⁻⁶, तो ये कितना हो गया बोलो -5 - 6, तो ये हो जाएगा -1, और ये भी कितना हो जाएगा -1, ये भी 10⁻⁻6 होगा ना, तो यहाँ पे हो गया 0.4 जूल्स और ये हो गया -0.2 जूल्स, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 0.2 जूल्स, ठीक है। सो 0.2 जूल्स ऑफ वर्क इज डन फ्रॉम A to B, 0.4 वर्क फ्रॉम A to B, ये तो सही है भाई साहब, इतना कहीं निकाल लिया भाई साहब हम। 0.2 वर्क फ्रॉम C to D, C to D में भाई साहब ये -0.2 है तो गलत है, ठीक है। नो वर्क इज डन बाय द गैस फ्रॉम B to C, B to C बराबर है नेट वर्क डन बाय द गैस इन 1 साइकिल इज, तो ये वाला आपका सही होगा है ना 0.2 जूल्स, समझ में आ रहा है, तो दिस वुड बी द राइट ऑप्शन, एकदम सही, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ, देखो भाई साहब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। फर्स्ट लॉ, तो किसका मूल्यांकन है यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, दिस इज ऑल्सो वर्क डन, दैट इज एनर्जी, तो किस चीज की बात कर रहे हैं हम, एनर्जी की, है कि नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी इन प्राइमरी, ठीक है, तो आपका एनर्जी हो जाएगा। अगर आप 0th लॉ की बात कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं, टेम्परेचर की, क्योंकि 0th लॉ में क्या बोल रहा है, ए अगर बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और सी के साथ, तो बी और सी आपस में किस में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो ये आपका किसका बात कर रहा है, टेम्परेचर का। फर्स्ट लॉ बात करता है एनर्जी का, 0th लॉ बात करता है टेम्परेचर का, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। A constant volume gas thermometer works on which one of them? Constant volume है, constant volume gas thermometer है भाई साहब। देखो आपका बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, what is Boyle's law? Pressure is inversely proportional to volume at temperature which is kept as constant, ठीक है। चार्ल्स लॉ भाई साहब क्या बोलता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम अगर आपका कांस्टेंट हो तो, ठीक है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर इसी पे काम कर रहा होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रख के, तो प्रेशर किस पे प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर पे, और ये किस में बोला जा रहा है, चार्ल्स लॉ, दिस इज बेसिकली चार्ल्स लॉ, सिंपल भाई साहब, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर वर्क्स ऑन चार्ल्स लॉ व्हिच स्टेट्स दैट pressure is directly proportional to temperature if we keep the volume of a gas as constant, clear हम, बहुत बढ़िया। Six moles of O2 gas is heated from 20 डिग्री to 35 डिग्री, तो आपका भाई साहब यहाँ पे T1 की वैल्यू कितनी है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 की वैल्यू कितनी है 35 डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ओके, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो आपका डेल्टा V आपका क्या हो जाएगा 0। इफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, Cp की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 8 कैलोरीज पर मोल केल्विन, इसको पहले तो कन्वर्ट कर लो भाई साहब जूल्स में, तो 8 इंटू 4.2 जूल्स पर मोल केल्विन, है ना, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब 2 8 जा 16, 8 4 जा 32, 33.6 जूल्स पर मोल केल्विन, ये हो गया आपका क्या भाई साहब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, क्लियर भाई साहब। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, आर की वैल्यू दी हुई है कितनी है भाई साहब 8.31 जूल्स पर मोल केल्विन, ठीक है। व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना होता है भाई साहब यहाँ पे, डेल्टा यू इज इक्वल टू हाउ मच एन, अरे बोला CV डेल्टा टी, ये होता है ना, ठीक है, CV डेल्टा टी, CV को फाइंड करना है भाई साहब, तो आपका Cp इतना है, तो
तो CV कितना हो जाएगा बोलो, CV इज इक्वल टू R माइनस CP, क्योंकि आपका C नहीं क्या आ जाएगा बोलो, मेयर्स इक्वेशन क्या है, CP माइनस CV इज इक्वल टू R, ये तो क्या है इक्वेशन, क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये क्या नहीं पढ़ा है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम। अरे भाई साहब आपका ये मेयर्स इक्वेशन है ना, ठीक है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो आपको यहां पे CV को निकालना है, तो CV कितना हो जाएगा बोलो, CP माइनस R, CP कितना आया 33.6, R कितना दिया हुआ है 8.31, माइनस कर दो भाई साहब यहां से कितना आ जाएगा बोलो 33.6, जरा माइनस करो ना इसको, 33.6 माइनस 8.31, तो ये आ गया आपका भाई साहब 9 + 1 10, 5 से 3 गया भाई साहब 2, यहाँ पे हो गया आपका 12 है ना, नहीं सॉरी 13, 8 + 5 13, 25.29, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया बोलो, दिस विल बी 25.29। भाई साहब ये एकदम फंडामेंटल फॉर्मूलेज हैं। 6 मोल्स मतलब 6 इंटू 25.29, और डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बोलो, केल्विन में कन्वर्ट करना है इसको, ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है, केल्विन में कन्वर्ट करना है, मतलब यहाँ पे पहले इसको कर लो, देखो 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस नहीं, यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई साहब, हाँ 15 + 273 कितना आ गया भाई साहब, 3 + 5 8, 7 + 1 8, 288। अरे यार ये फिर से कैलोरीज में क्यों आ गया, कितना रहा इसका देखो, 6 × 25.29 × 288, 43,700, 43,000 और 701, ओके, इसको डिवाइड करो भाई साहब 4.2 से, कितना आ रहा है, कैलोरीज में कन्वर्ट करना है ना, ये क्या हो रहा है भाई साहब, 20-35 है कांस्टेंट वॉल्यूम, गड़बड़ किया है अपन ने, $25.29 इंटू, हाँ सॉरी ये केल्विन में नहीं, डिग्री सेंटीग्रेड में ही होगा, करेक्ट, ये मैंने गलत किया है भाई साहब, ये आपका होगा भाई साहब 15, ठीक है, ये डेल्टा टी आपका 15 में, डेल्टा टी मतलब डिफरेंस इन द टेम्परेचर है, समझ में आ रहा है, मैंने क्या गलती की है यहाँ पे भाई साहब, इसको केल्विन में कन्वर्ट किया, लेकिन यहाँ पे
डेल्टा टी जो केल्विन में होगा वही डेल्टा टी भाई साहब आपका डिग्री सेंटीग्रेड में भी होगा। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? डेल्टा टी जो केल्विन में होगा वही आपका डिग्री सेंटीग्रेड में भी होगा। तो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब आपका, दिस विल बी हाउ मच, इसका करोगे कितना आया 2076.1। इसको अभी डिवाइड करो 4.2 से क्योंकि आंसर हमारा कैलोरीज में है, तो ये आ जाएगा आपका 541। ठीक है, सो दिस वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके। लेकिन भाई साहब आपको ये नहीं मालूम है, ये लानत की बात है भाई साहब, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। ओके, एन आइडियल गैस फ्रॉम पॉइंट A टू द पॉइंट B इज शोन इन द PV डायग्राम कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया है। द वर्क डन इन द प्रोसेस विल बी हाउ मच, वर्क डन इज इक्वल टू भाई साहब कितना हो जाएगा, एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है, यहां पे वर्क डन विल बी एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स PB प्लस PA, है ना, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब आपका क्या हो जाएगा, VB माइनस VA। तो आपका कौन सा हो जाएगा, VB माइनस VA। द फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो। समझ में आता हम पीपल हम? ठीक है, इस तरफ जा रहे हैं ना अपन, अगर इस तरफ जाते तो नेगेटिव हो जाता था, VA माइनस VB हो जाता था। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब एकदम सिंपल सा सवाल है ये, तो एकदम सिंपल सारा सवाल है। A system goes from A to B via two processes 1 and 2 as shown. If delta U1 and delta U2 are the changes in internal energies in the process 1 and 2, then क्या हो जाएगा? देखो आपका यहाँ पे P और V यहाँ पे जो है, ठीक है, ये एनर्जी जो है आपका, एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। ये भाई साहब आपका स्टेट फंक्शन है, इट इज नॉट अ पाथ फंक्शन। इसका मतलब समझते हैं, एनर्जी में आपका फाइनल स्टेज और इनिशियल स्टेज डिपेंड करेगा, किस पाथ से आप वहां पे गए वो डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, इट्स नॉट अ पाथ फंक्शन। तो भाई साहब आप इस पाथ से इस तक जाओ या इस पाथ से इस तक जाओ, सेम चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा। ठीक है, आप भाई साहब अगर ऐसे करके जाओगे, ऐसे ऐसे करके यहां तक पहुंचोगे तो भी सेम चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा। ठीक है, सो यहाँ पे आपका डेल्टा U1 इज इक्वल टू डेल्टा U2। इतने सारे जगहों पे ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट पूछा गया है, ये आपका कंसेप्चुअल सवाल है सीधा सीधा। ठीक है, ओके, दैट वाज इट फ्रॉम माय एंड पीपल। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स कितने का है, देखो 88 इंटू 10⁻⁻3। टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स 1 and 2 कैरी इक्वल अमाउंट्स ऑफ चार्जेस एंड आर फिक्स्ड एट सर्टेन डिस्टेंस लार्जर देन द डायमीटर। दस spheres repel each other with an electrical force of 88 millinewton. That is how much, 88 into 10⁻⁻3. A third identical sphere 3 having an insulating handle and initially uncharged is touched first to sphere 1 and then to sphere 2 and finally removed. Find the force. ठीक है, तो let's say यहाँ पे भाई साहब Q चार्ज है, यहाँ पे Q चार्ज है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q का स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर। ये है आपका 88 इंटू 10⁻⁻3। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके। अभी 1 को 3 से टच कराया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, Q/2। और ये वाला चार्ज कितना हो जाएगा भाई, ये वाला चार्ज कद्दू कटेगा, दोनों में बटेगा भाई साहब। ठीक है, Q दोनों में बढ़ गया, Q/2 और Q/2 में। ओके, अभी 2 और 3 को आप टच करा रहे हैं, तो 3 में अभी कितना है Q और 2 में कितना है Q, तो कितना टोटल चार्ज हो जाएगा, Q प्लस Q/2। ओके, ये बटेगा भाई साहब। ठीक है, तो आपका यहाँ पे Q प्लस Q/2, सो दैट विल बी हाउ मच हम पीपल, हम 3Q/2, ये डिवाइडेड बाई 2, सो दैट विल बी 3Q/4। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? तो अभी इसके पास कितना चार्ज हो गया भाई साहब, नाउ 2 के पास कितना चार्ज हो गया 3Q/4 और 1 के पास कितना चार्ज था देखो Q/2। अभी इन दोनों के बीच में हमको रिपल्शन निकालना है। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? ये मामला समझ में आ रहा है? पहले था भाई साहब Q। ठीक है, ओके, तो Q अगर हम देखेंगे तो कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, 88 मिली न्यूटन्स। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q²/R², कितना हो गया। अगर भाई साहब हमने किया इसको टच कराया तो इसमें Q/2 आ गया, इसमें Q/2 आ गया। ठीक है, अभी इसको इसके साथ टच कराया अगर तो कितना बढ़ जाएगा, इसमें आ जाएगा भाई साहब 3Q/4 और इसमें आ जाएगा 3Q/4।
तो अभी यहाँ पे हो गया q/2 और यहाँ पे हो गया कितना 3q/4, दोनों में क्या है आपका रिपल्शन, तो आपका यहाँ पे कितना होगा, नाउ द फोर्स विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू q/2 इंटू 3q/4 अपॉन r का स्क्वायर, सो दैट विल बी हाउ मच 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका 3 और ये हो गया आपका 4, ठीक है, और ये कितना हो गया q का स्क्वायर बाई r का स्क्वायर, ठीक है। आपके पापा कल बहुत देर से यहाँ पे खड़े हुए थे आपके जाने के बाद, ठीक है। 3/4, मैं जब तक बाहर गया तब तक वो चले गए थे, 3/4 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई r का स्क्वायर, समझ में आता हूं। इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, अभी तो आपने लिखा यहाँ पे देखो, ये लिख सकते हैं, तो ये हो गया 3/4 इंटू 88 इंटू 10⁻⁻3, तो ये हो गया आपका 22, तो ये हो गया आपका 66 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन। अभी इसको जिससे भी लिखना है आपको 6.6 लिखो, जैसा भी लिखो। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब यहाँ पे एक सवाल है, दो आइडेंटिकल मेटल ब्लॉक्स है, दीज आर टू आइडेंटिकल मेटल ब्लॉक्स, दे आर बेसिकली कनेक्टेड बाय अ स्प्रिंग, ठीक है। टू आइडेंटिकल मेटल ब्लॉक्स रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस है, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, ध्यान दो L0, कुछ नहीं है, चार्ज और कुछ नहीं है, दो आइडेंटिकल मेटल ब्लॉक्स को हमने रखा हुआ है एक हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर, डिस्टेंस बिटवीन द टू ब्लॉक्स इज हाउ मच पीपलम, L0, ठीक है। सो यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट आपको दिया हुआ है और ये आपका L0, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस आर कनेक्टेड बाय लाइट मेटालिक स्प्रिंग हैविंग अ स्प्रिंग कांस्टेंट K एंड एन अनस्ट्रेच्ड लेंथ L0, ये अनस्ट्रेच्ड लेंथ है, पहले का लेंथ, ठीक है। नाउ अ टोटल चार्ज Q इज स्लोली पेस्ड ऑन द सिस्टम, इस सिस्टम पे आप एक टोटल चार्ज डाल रहे हैं Q, ठीक है, causing the spring to stretch to an equilibrium length L। अभी क्या होगा देखो, ये Q जो है दोनों में बटेगा, तो इसके पास कितना चार्ज आ जाएगा Q, तो इसके पास आ गया भाई साहब आपका q/2 और इसके पास आ गया आपका q/2, सो नाउ द सिस्टम विल स्ट्रेच, ठीक है। अभी नया लेंथ कितना हो गया L, स्टार्टिंग लेंथ कितना था L0, नया लेंथ कितना हो गया L, अभी भी इक्विलिब्रियम में चिटक नहीं रहा है, यहां पे आके दोनों कांस्टेंट हो गए, ठीक है। डिटरमिन द वैल्यू, देखो स्प्रिंग क्या करता है, स्प्रिंग का एक फोर्स कांस्टेंट क्या होता है, अगर स्प्रिंग को आप कंप्रेस करेंगे जैसे ही छोड़ेंगे फिर से ऐसा हो जाएगा, और स्प्रिंग को अगर आप स्ट्रेच करेंगे जैसे ही छोड़ेंगे वो स्क्वीज कर जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग में एक रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नाउ बैलेंस्ड बाय द रेस्टोरिंग फोर्स। क्या ये समझ में आ रहा है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस is balanced by the restoring force that is acting between them। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा बच्चा बाड़ी, वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अभी इसके पास कितना q/2 इंटू q/2, ठीक है, अपॉन r का स्क्वायर, दैट इज हाउ मच L का स्क्वायर, ठीक है। ये वाला कितना हो जाएगा, रेस्टोरिंग फोर्स कितना होता है देखो kx होता है, और x क्या है, चेंज इन लेंथ, ठीक है, तो दैट विल बी k, और चेंज इन लेंथ कितना है L माइनस L0। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी, क्या ये इक्वेशन समझ में आ रहा है, ठीक है। व्हाट हैव यू बीन आस्क्ड, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ Q अज्यूमिंग दैट ऑल चार्जेस रिसाइड ऑन द ब्लॉक्स एंड द, तो सारा भी जो भी चार्ज है वो ब्लॉक्स में ही है, कहीं यहां पे नहीं गया या स्प्रिंग में नहीं आया, ठीक है, ओके। सो अपन अभी यहां पे क्या बोल सकते हैं, दिस कुड बी स्टेटेड एज, तो यहां पे हो जाएगा आपका कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई 4L का स्क्वायर इज इक्वल टू k L माइनस L0, ठीक है। तो यहाँ पे q स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो 16, इसको इधर ले लिया भाई साहब, 16 पाई एप्सिलॉन 16L स्क्वायर पाई एप्सिलॉन नॉट, 16L स्क्वायर पाई एप्सिलॉन नॉट k L माइनस L0। क्या ये समझ में आ रहा है? इसको इधर लिया है बस, तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √16L स्क्वायर पाई एप्सिलॉन नॉट k L माइनस L0, ये हो जाएगा आपका आंसर। चाहे तो आप इसको 4L बाहर निकाल लो, और ये हो गया पाई 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 एप्सिलॉन नॉट k L माइनस L0, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन हम पीपलम, ठीक है,
ओके ओके ओके। टू आइडेंटिकल हीलियम फिल्ड, ठीक है, टू आइडेंटिकल हीलियम फिल्ड स्फेरिकल बलून्स ईच कैरिंग अ चार्ज Q and mass M are tied to a W weight with strings and float in equilibrium as shown. Find the magnitude of Q assuming that the charge on each balloon acts as if it were concentrated at the center. तो भाई साहब देखो यहाँ पे दो बलून से ये उड़ रहा है, ये सिस्टम उड़ रहा है, किसी से इंक्लाइन नहीं है, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे क्या क्या फोर्सेस लगेंगे, बच्चा पार्टी जल्दी से बताना। ये वाला फोर्स क्या होगा, mg डाउनवर्ड्स। चलिए, सो दिस विल बी mg डाउनवर्ड्स, इसका मास m है, तो हियर वी हैव mg विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है, क्लियर है, ओके। और बताओ बच्चा पार्टी, यहाँ पे ये t हो गया, t, ये वाला t हो गया, ये थीटा है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, थीटा। तो ये t है अगर, तो t किधर जाएगा भाई साहब, t इस तरफ है ना, टेंशन इस तरफ से देखोगे तो टेंशन इस तरफ है। टेंशन क्या होता है, छतरी के माफिक होता है, जिस तरफ देख रहे हो उस तरफ से खुलना है। तो जैसे खुलता है ये, तो इस तरफ से इस तरफ देखोगे तो टेंशन इस तरफ, यहां से इस तरफ देखोगे, एक मक्खी, अपने आप को एक मक्खी मानो, ठीक है। अगर यहां पे बैठ गए तुम तो इसको देख रहे हो तो टेंशन तुम्हारा इस डायरेक्शन में होगा, अगर तुम यहां पे बैठ गए तो इसको देख रहे हो तो टेंशन तुम्हारा इस तरफ होगा। तो टी अगर इस तरफ है तो नीचे की तरफ कितना हो जाएगा आपका, बोलो, टी कॉस थीटा, ठीक है। तो टी कॉस थीटा प्लस mg आपका नीचे की तरफ हो गया फोर्स। और बोलो बच्चा पार्टी क्या क्या फोर्सेस हो जाएंगे, व्हाट एल्स वुड बी द फोर्सेस। तो यहाँ पे आपका ये हो गया भाई साहब, दिस विल बी बेसिकली व्हाट, थीटा, ये टी कॉस थीटा, और ये हो गया आपका टी, ठीक है, टी कॉस थीटा हो गया, ये x है और ये l है, ठीक है। और बोलो भाई साहब क्या क्या फोर्सेज होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, ये भाई साहब हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है बच्चा पार्टी। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इधर डायरेक्शन कौन बैलेंस कर रहा होगा भाई साहब, इधर क्या हो जाएगा, बोलो ना, बोलो, ये टी है इधर, टी कॉस थीटा, तो इधर क्या होगा, टी साइन थीटा। क्या ये मामला समझ में आ रहा है। फ्री बॉडी डायग्राम देख पर है, एक आपने मास को पकड़ लिया, इधर mg टी कॉस थीटा, इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाई r स्क्वायर, और इधर हो गया टी साइन थीटा। क्या ये मामला समझ में आ रहा है, ओके। लेट्स बैलेंस दीज फोर्सेस नाउ, ठीक है। तो आपका यहाँ पे टी कॉस थीटा प्लस mg, ये किसके बराबर होगा, टी कॉस थीटा प्लस mg, ये भाई साहब किसके बराबर होगा, बोलो, टी कॉस थीटा प्लस mg किसके बराबर होगा। अरे ये सिस्टम को देखो ना, सिस्टम को, चलिए ठीक है, नो इश्यूज। पहले हम क्या करेंगे भाई साहब, यहां पर लिख सकते हैं टी साइन थीटा कितना होगा, बोलो, चलो टी साइन थीटा लिखते हैं। टी साइन थीटा किसके बराबर होगा, एफ ई, है कि नहीं, ठीक है, ओके। चलिए, अगर देखो इसको मैंने इधर से देखा तो ये टी हो गया, इधर कितना होगा, टी कॉस थीटा इधर, और इधर कितना है, हाउ मच वुड दिस बी, इस पे कितना लग रहा है, W, है कि नहीं, समझ में आ रहा है ये, इस बॉडी पे, इस बॉडी पे, चलो यहां पे कंफ्यूज हो रहा था ना, इस बॉडी को ले लेते हैं अपन, तो यहां पे क्या हो जाएगा, बोलो, mg नहीं, W दिया हुआ है ऑलरेडी, वेट दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो यहां पे अपन क्या लिखेंगे, बोलो, यहां पे देखो एक चीज देखो, यहां पे ये टी कॉस थीटा इधर इसका और टी कॉस थीटा इधर इसका, तो कितना हो जाएगा, 2t कॉस थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है भाई साहब, एडवांस लेवल का सवाल है। देखो ये टेंशन टी कॉस थीटा, ये टेंशन टी कॉस थीटा, टी प्लस टी दैट इज 2t कॉस थीटा, ठीक है। सो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं बच्चा पार्टी, ठीक है, 2t कॉस थीटा इज इक्वल टू W। समझ में आता है भाई साहब, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, t कॉस थीटा इज इक्वल टू W/2, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। और क्या लिख सकते हैं, बोलो, यहां पे देखो ये चीज हवा में है, हवा में रहने के लिए क्या लगेगा, यहां पे आपको क्या पूछा है, देखो, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ Q अज्यूमिंग दैट द चार्ज ऑन ईच बलून एक्ट्स, ठीक है। चलिए ये तो दूसरा वाला पार्ट है, फाइंड द मैग्नीट्यूड, तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो, बोलो, tan थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, एफ ई बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा ना, ये कैंसिल, तो एफ ई बाई W, और ये 2 ऊपर गया, ठीक है, 2 ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बोलो क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर, नहीं, कितना चार्ज है, Q स्क्वायर है ना, Q स्क्वायर बाई ये वाला, ये कितना हो जाएगा, बोलो,
2x है ना, x और x, तो ये हो गया 2x, 4x स्क्वायर डायरेक्टली लिख दो भाई साहब, 4x स्क्वायर अपॉन w, ठीक है, अपॉन w। तो आपका भाई साहब यहाँ पे आपको q स्क्वायर को वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हो गया w tan थीटा अपॉन अपॉन 2 इंटू 1/4πε0 q स्क्वायर बाई 4/x स्क्वायर, सॉरी q स्क्वायर को इधर ही रहने देते हैं, ठीक है, तो ये हो गया आपका q स्क्वायर, इधर ही रह गया ये, ठीक है। सो अगर भाई साहब इसको हम सॉल्व करते हैं, सो दिस विल बी, इसको ऊपर ले लो भाई साहब, w tan थीटा, ठीक है, अपॉन यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 4 क्या है यहाँ पे 16 हो गया ना, इंटू 16 पाई एप्सिलॉन नॉट x का स्क्वायर अपॉन 2, ये कर लो भाई साहब, ये हो गया 8, ठीक है, दैट इज इक्वल टू q का स्क्वायर। तो आपका q का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चा पार्टी, अंडर रूट ऑफ 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर w tan ऑफ थीटा। जो जो चीजें आपको दी हुई हैं उसी में आपने एक्सप्रेस किया है। एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, r स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर है ना, x का स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर, ये हो गया भाई साहब आपका x स्क्वायर, ठीक है, w आपको दिया हुआ है, x आपको दिया हुआ है, और ये हो गया आपका tan थीटा, ये हो गया q, ठीक है। अभी दूसरा पार्ट जो आता है सवाल का, उसमें दिमाग लगेगा भाई साहब। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच बलून, ठीक है, टेक द डेंसिटी ऑफ हीलियम, तो यहाँ पे आपको डेंसिटी ऑफ हीलियम दी हुई है He एंड द डेंसिटी ऑफ एयर SA, आपको वॉल्यूम ऑफ ईच बलून निकालना है। इग्नोर द वेट ऑफ द अनफिल्ड बलून्स, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ईच बलून निकालना है, अनफिल्ड बलून्स, आपको यहाँ पे अनफिल्ड बलून के वेट को इग्नोर करने बोला है, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे देखते हैं अपन, लेट्स से एक बलून का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ओके, ये एक बलून है भाई साहब, ठीक है, इसमें क्या क्या फोर्स लग रहे होंगे भाई साहब, देखो नीचे की तरफ क्या लग रहा है आपका, अब देखो इस बलून को देख रहे हैं तो टेंशन हमारा इस तरफ होगा, ठीक है, टेंशन की छतरी भाई साहब इस तरफ खुलेगी, आप इधर बैठे हैं और ऐसे देख रहे हैं, तो ये हो गया आपका टेंशन, ये हो गया टेंशन, ये हो गया आपका थीटा, तो नीचे क्या हो गया आपका t cos थीटा, और नीचे क्या जा रहा है भाई साहब आपका प्लस इसका खुद का वेट t cos थीटा प्लस mg नीचे। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भाई साहब किस तरफ लग रहा है, ये इस तरफ लग रहा है भाई साहब, ठीक है, दिस इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, व्हाट एल्स इज एक्टिंग, और क्या लग रहा है, हाँ t sin थीटा, चलिए t sin थीटा कोई दिक्कत नहीं, t sin थीटा, चलिए तो यहां पे हो गया आपका t sin थीटा, चलो भाई साहब t sin थीटा, और बोलो भाई साहब और क्या लग रहा है, क्या प्रेशर, नहीं गैस के प्रेशर से लिखना नहीं, जो बलून में गैस भरा हुआ है वो उसका प्रेशर नहीं, और थोड़ा बोलो और क्या हो सकता है, हाँ वेट ये हुआ ना, मतलब मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, एक इसमें क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, वेट लिया ना हमने, mg हो गया इसका वेट, फ्रिक्शन नहीं फ्रिक्शन उतना नहीं है, बोलो अरे भाई साहब कोई चीज अगर फ्लोट कर रही है तो उस पर क्या लग रहा है, नहीं फ्लोट कर रही है, फ्लोट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपने पढ़ा हुआ है, फ्लोट करते हुए चीज पे क्या लगता है, अपथ्रस्ट या बुयान्ट फोर्स लगता है, ठीक है, तो यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपथ्रस्ट लिख सकते हैं, एयर इज एक्सर्टिंग एन अपथ्रस्ट ऑन इट, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, सो एयर इज बेसिकली एक्सर्टिंग एन अपथ्रस्ट ऑन इट, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, तो तुम्हारा अपथ्रस्ट किससे बैलेंस हो रहा है, t cos थीटा प्लस mg से बैलेंस हो रहा है, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, और इधर देखोगे अगर इस पे, इस W वेट पे, ठीक है भाई साहब, ये W वेट देख लो, ये आपका W वेट है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, ये हो गया आपका भाई साहब FBD ऑफ वन ऑफ द बॉल्स, ठीक है, और यहाँ पे W का देख लो, यहाँ पे है आपका इधर से और इधर से कितना है भाई साहब टेंशन है, और इधर हो गया, ठीक है, सो समझ लो भाई साहब ये हो गया T, ये हो गया T, तो ये कितना हो जाएगा 2T, ये आपका कितना है, दिस इज बेसिकली थीटा, तो ये t cos थीटा, तो 2t cos थीटा, और ये आपका कितना है भाई साहब W, ठीक है, तो 2t cos थीटा इज इक्वल टू W, तो अपन क्या बोल सकते हैं बोलो, यहाँ पे t cos थीटा की वैल्यू कितनी हो गई W/2, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब। ओके, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अपथ्रस्ट इज इक्वल टू t
cos थीटा प्लस mg। क्लियर है? मास ऑफ बलून इंटू जी। क्लियर है? ओके। अपथ्रस्ट क्या होता है? व्हाट इज अपथ्रस्ट? व्हाट विल बी द अपथ्रस्ट? अरे बोलो भाई साहब, अपथ्रस्ट क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द बलून, वॉल्यूम ऑफ द बलून इंटू डेंसिटी ऑफ एयर। यहां पर देखो डेंसिटी ऑफ एयर इंटू जी, ये हो जाएगा आपका अपथ्रस्ट। ठीक है? क्लियर है? वॉल्यूम ऑफ द बलून, डेंसिटी ऑफ एयर इंटू जी, दिस विल बी द अपथ्रस्ट। क्लियर है? What is upthrust? Upthrust is the force which an liquid or a fluid exerts on a body. This force is equal to the volume of the liquid or the fluid displaced. तो इतना वॉल्यूम ऑफ द बलून, डेंसिटी ऑफ एयर इनटू जी। ओके, ये हो गया आपका क्या? टी कॉस थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो? W/2 लिख सकते हो, बोलो। और mg की जगह पे क्या लिख सकते हो? हीलियम से भरा हुआ ये। ठीक है? तो आपका वॉल्यूम ऑफ द बलून इंटू डेंसिटी ऑफ हीलियम लिख सकते हो, ये यही तो होगा मास। ठीक है? इंटू जी। क्लियर है भाई साहब? ठीक है? ओके। टेक द डेंसिटी ऑफ, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच बलून। तुमको यहां पे वॉल्यूम फाइंड करना है, तो अभी क्या करेंगे भाई साहब? वॉल्यूम और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हमने बाहर निकाला, इसको इधर लिया। डेंसिटी ऑफ एयर माइनस डेंसिटी ऑफ हीलियम इज इक्वल टू W/2। मेकिंग सेंस पीपल? हम ठीक है? क्लियर है? ओके। तो आपका भाई साहब यहां पे डेंसिटी ऑफ एयर माइनस डेंसिटी ऑफ हीलियम, ये कितना हो जाएगा? सॉरी, आपको वॉल्यूम को निकालना है ना, तो आपका वॉल्यूम भाई साहब कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ ईच बलून विल बी इक्वल टू W/2 अपॉन जी। ठीक है? डेंसिटी ऑफ एयर माइनस डेंसिटी ऑफ हीलियम। ठीक है? सो ये हो गया आपका W/2g डेंसिटी ऑफ एयर माइनस डेंसिटी ऑफ हीलियम। मेकिंग सेंस पीपल? हम ठीक है? ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ ईच बलून। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है पीपल? हम बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत है बढ़िया। ये तो लंबा चलेगा भाई साहब। ओहो,